دنیا بھر میں انتخابات کارکردگی کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں۔ انتخابی مہمات میں اپنی سابقہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، وعدے و وعید اور ووٹرز میں نئی امید جگائی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں حالیہ کچھ برسوں میں انتخابی مہمات میں مخالفین کی تذلیل کی روش چل پڑی ہے۔ مخالف سیاسی رہنماؤں کو چور، ڈاکو کے القابات سے نوازنا اور سیاسی حریفوں کی ذات پر رقیق جملے بازی اب عام بن گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے ریاستی انتخابات میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن امور کشمیر کے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے بد زبانی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی موضوع پر آج سب سے پہلے بات ہوگی، دیگر خبروں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور نے کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں۔ سیاسی مخالفت میں اتنا آگے چلے گئے کہ ملک کو آئین دینے والے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور ایٹمی دھماکے کرنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈاکو قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کرپشن کے ریکارڈ توڑے۔ مریم نواز تصویریں فوٹو شاپ کر کے کشمیری عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مریم جہاں جائیں خود کو وہیں کی بیٹی بتاتی ہیں۔ سندھ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں مگر پی پی والے کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے۔ عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑا۔ عمران خان پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ انتخابی مہم میں علی امین نے ایک بار پھر ووٹ ملنے پر بڑے ترقیاتی پیکیج دینے کا اعلان کیا اور گلگت بلتستان میں ایک ووٹ کی لیڈ پر 1 کروڑ کا پیکیج دینے کا اپنا ہی وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ شوبز انڈسٹری کے ہر دم جوان رہنے والی خوبرو اداکارہ ماہنور بلوچ 51 برس کی ہو گئی۔ خوبرو اداکارہ طویل عرصے بعد اسکرین پر واپسی کے لیے تیار ہیں۔ وہ عید الاضحیٰ پر ARY پر نشر ہونے والی ٹیلی فلم گھن چکر میں اعجاز اسلم کے مد مقابل اداکاری کرتی نظر آئیں گی۔ اداکارہ ماہنور بلوچ نے اعجاز اسلم کے ساتھ ٹیلی فلم کی عکس بندی کے مناظر انسٹاگرام پر شیئر کیے۔ صارفین نے اداکارہ کے اسکرین پر واپسی کی خبر، خوشی کا اظہار اور دلچسپ تبصرے کیے۔ ایک صارف نے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ایک صارف نے سوال کیا، آپ بوڑھی کب ہوں گی؟ ایک اور صارف نے کہا کہ آپ ابھی بھی ناقابل شکست ہیں۔ خوبصورتی میں کئی نوجوان اداکاراؤں کا آج بھی آپ سے کوئی جوڑ نہیں۔ واضح رہے کہ ماہنور بلوچ 14 جولائی 1970 کو بلوچستان میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے 23 برس کی عمر میں PTV کے ڈرامہ سیریل ماروی سے فنی سفر کا آغاز کیا تھا۔ 51 سالہ ماہنور بلوچ نانی بن چکی ہیں مگر آج بھی اپنی بیٹی کی دوست نظر آتی ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کو ملک میں مقبولیت حاصل ہو نہ ہو لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر آئی ہے۔ مالی سال 2021 میں قومی ترسیلات زر ریکارڈ 29 ارب 40 کروڑ ڈالر تک جا پہنچے۔ سینیٹر فیصل جاوید خان نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسے اقدامات کی بدولت مالی سال 2021 میں پاکستان کے ترسیلات زر 29 ارب 40 کروڑ کی سالانہ بلند ترین سطح تک پہنچ گئے۔ عالمی معاشی صورتحال کو درپیش چیلنجز کے باوجود ترسیلات زر کی بدولت ہماری معیشت پروان چڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا کہ ریکارڈ ترسیلات زر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ میری پیش گوئی کے مطابق ہم 32 ارب ڈالر کی ترسیلات زر کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو سہولتوں کی فراہمی اور انہیں ووٹ کا حق دینا اظہار تشکر کا بہترین طریقہ ہے۔ انگلینڈ کی ناتجربہ کار ٹیم کے ہاتھوں ون ڈے سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کے باوجود کپتان بابر اعظم نے اپنی کارکردگی سے سب کو تعریف پر مجبور کر دیا۔ تیسرے ون ڈے میں 158 رنز کی اننگز کھیلنے والے بابر اعظم نے تیز ترین 14 سینچریاں مکمل کرنے سمیت کئی ریکارڈ بنائے اور ثابت کر دیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بابر اعظم نے 14 ون ڈے سینچریاں اپنے 81 میں ایک روزہ میچ میں مکمل کی۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ نے یہ کارنامہ 84 اننگز میں انجام دیا تھا۔ بابر اعظم انگلینڈ میں 3 ون ڈے سینچریاں اور 1000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بھی بن گئے۔
जबकि 158 रन्स की इनिंग्स खेलकर वनडे में बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। बाबर आजम 38 साल में इंग्लैंड की सरजमीन पर सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान हैं। इससे कबल वर्ल्ड कप 1983 में इमरान खान ने सेंचुरी बनाई थी। बाबर आजम इंग्लैंड की सरजमीन पर दो तरफा वनडे सीरीज के मैच में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर बनाने वाले कप्तान भी बन गए हैं। बाबर आजम का 198 रन्स का इनफरादी स्कोर इंग्लिश सरजमीन पर किसी भी पाकिस्तानी का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इससे कबल इमामुल हक ने यहां 151 रन्स की इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ इंग्लैंड के खिलाफ 179 रन्स की सबसे बड़ी शराकत कायम करने में भी कामयाबी हासिल की है। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने अजीम अदाकार दलीप कुमार को खराजे तहसीन पेश करते हुए उनकी जात पर चंद सवालात भी उठा दिए। नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय जरीदे में लिखा है कि दलीप कुमार ने 5 दहाइयों तक काम किया, लेकिन हिंदुस्तानी सिनेमा की तरक्की में किरदार अदा नहीं किया। बतौर अदाकार उनकी हैसियत काबिल तकलीद थी, लेकिन वो बड़ा नाम होने के बावजूद अदाकारी के अलावा भारतीय सिनेमा के लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने लिखा कि दलीप कुमार ने अदाकारी और चंद समाजी खिदमात के अलावा कुछ नहीं किया। दलीप कुमार के सवाने उम्री में चंद पुराने इंटरव्यूज के अलावा नए अदाकारों के सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने दलीप कुमार की अदाकारी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अपने जज्बात के इजहार के लिए मसनूई लवाजिमात की जरूरत नहीं पड़ती थी। वाज़ेह है कि नसीरुद्दीन शाह ने अपने हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि दलीप कुमार ने उन्हें अदाकारी के मैदान में कदम रखने के बजाय तालीम का सिलसिला जारी रखने का मशवरा दिया था। दलीप कुमार ने कहा था कि अच्छे घरानों के अफराद अदाकार नहीं बनते। अब शारे फैसल पर सफर के दौरान गाड़ी खराब हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर मुश्किल में फंसे शहरियों की मदद के लिए खवातीन बाइक राइडर्स का दस्ता उतार दिया। पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर ये खवातीन महारत से मोटरसाइकिल चलाती हैं और शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की ताकीद करती हैं। इब्तदाई मरहले में 4 खवातीन राइडर्स को पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। चारों राइडर्स रोज सुबह 10 बजे कैंट ट्रैफिक सेक्शन पहुंचकर अपनी 150 सीसी मोटरसाइकिल संभालती हैं और गश्त पर निकल जाती हैं। खवातीन राइडर्स को दोपहर 2 बजे तक मेट्रोपोल से स्टार गेट तक गश्त करने के फराइज सौंपे गए हैं। इन दिनों खवातीन राइडर्स मोटरसाइकिल सवार शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फराहम करने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक खवातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को चालान का इख्तियार नहीं दिया गया है, अलबत्ता तमाम लेडी राइडर्स को वॉकी टॉकी सेट फराहम किए गए हैं, जिससे वो फौरी तौर पर सूरत हाल से अफसरान को आगाह करती हैं। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद रोकने की जानिब अहम पेशरफ्त। ज़ेर हिरासत मुल्जिम की मौत या इस पर जिनसी तशद्दुद के मुर्तकिब सरकारी मुलाजमीन को नाकाबिले मुआफ़ियों, नाकाबिले जमानत उम्र कैद और 30 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तशद्दुद के जरिए इकबाल जुर्म भी अदालत में नाकाबिले कबूल होगा। सेनेटर शहरी रहमान का पेश करदा बिल ऐवान बाला ने मंजूर कर लिया। हुकूमत ने भी इस बिल की हिमायत की है। बिल के मतन के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुल्जिम की मौत या जिनसी तशद्दुद के जुर्म का इर्तिकाब या इसकी साजिश करने वाले शख्स को उम्र कैद और 30 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम जानबूझकर या गफलत के नतीजे में ज़ेर हिरासत अमवात या जिनसी तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहता है तो इसे कम अज कम 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। बिल के तहत जुर्माना मकतूल या उनके कानूनी वरसा को अदा किया जाएगा। अगर जुर्माना अदा नहीं किया गया तो जुर्म का इर्तिकाब करने वाले सरकारी मुलाजिम को बिलतरतीब 3 और 5 साल तक इजाफी कैद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मुहर्रिक सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि यह कानून गरीब और मजलूम को तहफ़्फ़ुज़ देगा। कई अफराद थानों में पुलिस हिरासत में तशद्दुद की वजह से फौत हो जाते हैं। ये बिल इस तशद्दुद के खिलाफ है। बिल के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों तशद्दुद को जुर्म करार दिया जाएगा। इकबाल जुर्म कराने के लिए तशद्दुद का जालिमाना तरीका अब बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल का दूसरा रुख दिखाने पर सीनियर एंकर सलीम साफी नाम नेहाद लिबरल्स के निशाने पर आ गए। सलीम साफी का अपने प्रोग्राम जिरगा में अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन को मद्दू करना तरक्की पसंदों को एक आंख नहीं भाया। ट्विटर पर सलीम साफी के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी गई।
ANP के रहनुमा खादिम हुसैन ने सलीम साफी के प्रोग्राम का अक्स ट्वीट करते हुए तबसरा किया कि खुदकुश बम धमाका करने वाले और तालीमी इदारों को बमों से उड़ाने वाले तालिबान के तर्जुमान अब टीवी चैनलों पर बराजमान नजर आते हैं। अफगान हुकूमत के किसी नुमाइंदे की राय नहीं ली जाएगी। बलोच, पश्तून और सिंधी कौम परस्तों के लिए पाकिस्तानी मीडिया में कोई जगह नहीं। सलीम साफी ने खादिम हुसैन को जवाब में ANP हुकूमत और सूफी मोहम्मद के दरमियान होने वाले मुआहदे का अक्स शेयर करते हुए लिखा है कि तालिबान के साथ ये मुआहदा मीडिया ने नहीं बल्कि ANP की हुकूमत ने किया था। सुहेल शाहीन वाले जिरगे के लिए भी एमल वली खान को दावत दी गई थी, लेकिन वो मसरूफ थे। पाकिस्तानी मीडिया पर ANP के नहीं मंजूर पश्तीन जैसे कौम परस्तों पर पाबंदी है। ANP तो बलोचिस्तान की सिलेक्टेड हुकूमत में भी हिस्सेदार है। सलीम साफी ने कहा है कि एक तरफ रियासत और सिलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तानी मीडिया पर बरहम है, तो दूसरी तरफ तालिबान मुखालिफ सियासतदान अमरीका पर गुस्सा निकालने के बजाय सारा गुस्सा पाकिस्तानी मीडिया पर निकाल रहे हैं। खुद जाली पार्लियामेंट में बैठे मरात ले रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं तो मीडिया छोड़ दें। हिम्मत है तो आप लोग जाली पार्लियामेंट छोड़ दें। दूसरों पर अपनी राय मुसलत करना और माशरे में सिर्फ अपने नजरिए के फरोग की ख्वाहिश रखना भी इंतहा पसंदी ही है। नजरिए की जीत इसी सूरत में मुमकिन है जब मुखालिफ के नजरिए को भी परवान चढ़ने का मौका दिया जाए और फिर किसी एक नजरिए का इंतखाब अवामुन नास पर छोड़ दिया जाए। वतन अजीज के लिबरल तबके ने भी इंतहा पसंदी की रविश अपना ली है और चाहता है कि मीडिया भी सिर्फ उसी के नजरिए को फरोग दे। सलीम साफी के खिलाफ ट्रोलिंग में भी यही इंतहा पसंद मुलविस हैं, जिन्हें खित्ते में हकीकत के तौर पर सामने आने वाले अफगान तालिबान का वजूद तस्लीम नहीं है। बुलेटिन में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।